Septica is a data leak prevention. So, let me give you some clear definition. What is DLP? What is antivirus? So, most of the times, or maybe the encryption, like most of the time, partners, customers have a very wrong definition of this solution. Like they understand uh, like what is, or they even don't understand like when which solution is supposed to be used. So my clear definition is something. Okay, for antivirus, what comes in? Okay, you want to protect your system from the like from the external threats. So if someone is trying to get into your system, okay, Okay. then the antivirus comes in the picture, okay. Hmm. And when DLP comes in the picture, what goes out? So if someone is trying to send the data outside the organization, that is a DLP. Like if you want to protect that, that is something a DLP, data leak. So your sensitive information going out from the organization, okay. Okay. And in both the cases there are two different threats. So first thing you need to understand, what is the threat to the customer data, that is the external threat or internal threat. So based on that we can provide the solution, like whether they need an antivirus solution, encryption solution, or a DLP solution. Hmm. So DLP, as I mentioned, like what goes out. So what goes out means who can send the data outside the organization, mostly your employees, right? Yes. So when it comes to that, what are the most what are the threats from where your data can go away? Okay, Okay. so the threats can be uh, uh, your unhappy employee, Hmm. okay, who is trying to send the data to the competitor, or just sending the information from himself, and then just to gather some information in the internal company information, and then maybe he is planning to start his own company, or maybe sometimes a problem in the process is like you haven't done anything, you haven't done the configuration properly, and that's why they are allowed to send the data outside, right? Right. And they even don't know what to do, right? This is not legal to send the sensitive information out from the company or not. Or sometimes a human error, like we are all are the human, Hmm. and we do mistakes. So sometimes mistakenly we can send some sensitive information to someone we should not send. That's where the DLP comes in the picture to protect all those data leak scenarios. And when I mention you the data leak, okay, I also mention you the threats to the data. That can be the employee. Most of the times it the employees tries to send the data outside the organization, Hmm. right? Right. And we want to protect that. So when I'm saying data, so what can be the data? Data can be anything, like company sensitive information, intellectual property, projects, everything. It can contain anything, right? Right. And then we can do we can apply necessary policies, like this should happen with the data, this should not happen. So let's talk with the introduction to the company first, and then go ahead with the full feature set, or we can also go through the live demonstration of the product, okay. Okay. So the today's agenda will be, we will be see what we will first be having a company introduction, then how Septica works and helps organization to protect their data. What is different in a Septica DLP as compared to other DLP vendors, and then a live demonstration. Okay. Okay. So as mentioned earlier, I'm from the ESET. My name is Chetan Mala, and I'm the technical sales engineer at ESET, supporting partners and customers from the SARC region. So why we are doing Septica? First thing, like as I'm from the ESET, ESET is basically 33 old year anti-malware company, and basically we are into endpoint protection, anti-malware, internet protection, network security, and so on. Okay. Okay. So basically the technology which do not have, or we haven't developed by ourselves, right? We borrow, or we do a partnership with some vendors, and we try to provide those solutions to our existing customers.
That's why we have formed a partnership technology alliance membership with the Septica, and that with that we are authorized to sell and support Septica product through our existing channel network. Okay, so Septica is a Czech Republic company. Basically, it's in Europe, and it founded in 2011. So Septica provides data leak from the all channels from where it can go away. Like we will cover that with channels, and it also provides you the information about the insider threat detection. So what is the threat to your data and so on. And basically the solution is designed for any size of organization, so it can fit into SMB, enterprise, and so on. And Septica is already recognized by Gartner and Forrester. We also received the latest reward awards from Software Review. Okay, so many times customer might ask you whether the product is into the Gartner or in the Forrester's Magic Quadrant. So that will be helpful. And this is the Septica line which basically shows how we are basically growing. Okay, and as mentioned earlier, Septica first generation of DLP is formed in 2011. Then we had a technology alliance membership in 2016, and then there are other partnership with other security vendors and so on. So this is how Septica as a company is growing, and these are the technology alliance members and partnership Septica is having currently. So how Septica can help and protect? So basically, as I mentioned earlier, like there can be, what are the most frequent cause? It can be a problem in the processes, unhappy employee, and the human error, right? And on the left hand side, you can see the what sensitive data can go away, or what can be the sensitive information for the company. It can be personal data, strategic plan, customer database, intellectual property, or contract. So maybe let's take an example. If I am from the designing industry, designing files will be more sensitive for me, and I can then apply a DLP policies on them. So this is how it and how Septica can help. Like we basically have three different modules. One is a discovery, another is a protection, and third one is a Septica enterprise. So discovery audit each and every activity happens in the user machine, like what files they are accessing, what websites they are accessing, email communications, web communication, everything, all the activities will be recorded by our discovery. And this information can be used for various reasons. Like this information can simply use to get an information about your organization, like how employee working on their data, or how your data is going from your organization. In short, you can see the data flow, how data is flowing within the organization. With this, you can also see how users are spending their work time, like which applications they are working on during the working hours, and which websites, and so on. So you can get a detailed information about all the activities. This can also be useful for the administrators who are new to organization, and they don't know what type of data is there in the organization, and how it is going out, right? Once we identify this information, we can protect, or we can create a DLP policies. And in the DLP policies, we have various modes like log only, log and notify, log and block. So by default, if you want to log all the operations, you can log. Then the next thing is log and notify. So with that, we can notify the users when they're trying to send or sensitive information, and they will be prompted like the activity they are trying to do that is against the company policy, and but they are still allowed to do the operation. So with that, what we can do, we can inform the users that
this is the sensitive information and should not go away, and then user can decide what to do with that. So as the policy is not restrictive, they are still be able to do the operation, like they can able to send the data. And then if you are very much sure this is something a data leak and this data should not go away from your organization, you can simply configure a restrictive DLP policies, and then user won't be able to send the sensitive information outside the organization. And what channels basically we cover, so as mentioned earlier, we do provide data leak from all the channels, like all channels, file sharing like a WeTransfer and so on, email communication, internet, removable medias, or just copy operation, print screen operation, or if you're trying to copy the data from the RDP. So all these communications will be protected with the help of DLP. So what basically with the help of DLP you can do, we are not blocking the entire channel. We are allowing users to work with their data. We are allowing users to work with the websites or application, but we are just preventing them from sending a sensitive information out from the organization. But they are still able to send the information within the organization if you are configuring that information in the same way. Okay. Okay. And this is the same picture I was showing you earlier, like Septica agent will first monitor each and every activity from the client machine, and then you can configure a DLP policies like detect, notify, justify, and block operations. You can configure. Once any DLP activity happen, then information will be sent to your Septica server, and then admin can review that information or just see the logs, what is happening within the organization, how users are working, where they are sending the data, and so on. So everything will be visible on the Septica console. So these are some security stack companies we are compatible with. And what is different in Septica as compared to other security or the DLP vendors in the market? Basically, the solution is very easy and quick to deploy. So this is not a Septica saying, this is we receive the feedback from the customer and they are saying the solution is very easy and quick to deploy. We also have advanced behavior analysis, so we can see the user behavior, how they are working, what are their most common activity, we can see the productivity and so on. When it comes to the DLP, it is more about the data. It is not just blocking any type of data. So we focus on protecting, or we more focus on defining sensitive data more clearly, and then apply a DLP policies. And apart from that, we also have many other features like a behavior analysis, IT utilization. So this is more being used during this lockdown when employees are working from the home and admin wants to see how they are spending their work time. They want to see their productivity, IT utilization, along with protecting their sensitive data going out from the organization. Okay, and this screen basically shows the presence of Septica all over the world. So currently it is present in 120 countries, and these are the protected devices worldwide. These are our some global references. So basically, even we do have more bigger customers all over the world, even bigger customers in India, but due to the non-disclosure agreements, we are not showing everything on the front end. So these are a few companies who agreed to show their information on our all the communication materials. That's why we are allowed to show them. And this is what I was talking, like this is Septica have received the software review award, and we are into a leaders quadrant of
the this product, this software review. Okay. So as mentioned earlier, like we do have three different SKUs: Septica One Discovery, Septica One Protection, Septica One Enterprise. So Septica Discovery will monitor each and every activity from the user machine, and it also gives you the user behavior analysis report, like what user activity they are doing in their machine. Then a protection will also protect data leak from all the data leak channels, and enterprise will have some more advanced features like workspace control or multi-domain support, customization, logo customization, like rebranding and so on. So these are some advanced features available into our ESET Septica One Enterprise. So I'll be sharing with you the data sheet after the session, so you will be able to see what exact features will be covered in every licensing module. Okay, okay. So this is all about the Septica. So if you have any queries with that, just let me know. Otherwise, we can go ahead with the next screen. सर इसमें आपने ये, हाँ ये वाली स्क्रीन है, इसमें जी। जो फर्स्ट हमारा आता है डिस्कवरी, सेकंड है प्रोटेक्शन। तो सर ये डिस्कवरी से एडवांस है प्रोटेक्शन ना? डिस्कवरी में थोड़े कम फीचर आते हैं, उससे डिस्कवरी ज़्यादा में खाली ना, प्रोटेक्शन में देखिए आते हैं। डिस्कवरी में खाली मॉनिटरिंग आता है। ओके, इसमें हम कोई डेटा लीक प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, इसमें खाली मॉनिटरिंग है। हम इनसाइडर थ्रेड डिटेक्ट कर सकते हैं, डेटा फ्लो देख सकते हैं, यूजर क्या कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी, आईटी यूटिलाइजेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, खाली देख सकते हैं। ओके, किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कोई यूजर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर बाहर भेज रहा है तो वी कैन नॉट कंट्रोल दैट। जो हम कर पाएंगे प्रोटेक्शन के अंदर। ओके, प्रोटेक्शन में कर सकते हैं। ओके, ओके, ठीक है सर। एंड उसके बाद में हमारा एंटरप्राइज आता है, जिसमें कुछ एडवांस फीचर रहेगा। तो वही जब मैं आपको डेटा शीट दूंगा तो यू विल बी एबल टू केम टू नो लाइक वी हैव डिफरेंट थिंग्स। या ठीक है, ओके, okay, so next I am pulling another presentation of mine, जिसमें हम देखेंगे कि प्रोडक्ट को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है और क्या क्या कंपोनेंट इसके अंदर है। ओके, so let me close this one. So basically सेप्टिका कंपोनेंट, जैसे कि आप अभी सपोर्ट में काम करने वाले, तो यू विल बी मोर need to know these things, क्या है, कैसे करना है, वगैरह वगैरह, राइट। सो सेप्टिका मैनेजमेंट सर्वर which is the main program, सेप्टिका सर्वर जो सारे DLP operations वगैरह करेगा, राइट। then we have a सेप्टिका मैनेजमेंट console which is a user application based user interface to access your सेप्टिका मैनेजमेंट सर्वर। then एक और आता है Web Septica. So Web Septica is more designed for the managers who wants to see the information of the users or the information of their organization. Okay. Then जैसे कि इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन क्लाइंट मशीन से कलेक्ट होती है, तो we need something to store that. That's why we use Microsoft SQL Server as a database to store the information received from your endpoints. Okay. So ये जो ऊपर के चार कंपोनेंट है, that will be installed on your server side. ओके, सेप्टिका मैनेजमेंट सर्वर ये सर्वर पे होगा जी। सेप्टिका मैनेजमेंट सर्वर मतलब एक तो सर्वर रहेगा जिसमें आपके चारों भी कंपोनेंट इंस्टॉल होंगे ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। कंसोल और ये वेब सेप्टिका, जी, एवरीथिंग विल बी इंस्टॉल ऑटोमेटिकली। ओके, ओके। देन इसके बाद में आता है हमारा सेप्टिका। अभी क्लाइंट साइड में क्या रहेगा? क्लाइंट साइड वी विल बी हैविंग टू कंपोनेंट्स, वन इज अ सेप्टिका एजेंट, अनदर इज अ सेप्टिका क्लाइंट। तो सेप्टिका एजेंट को आप डाउनलोडर एजेंट भी बोलते हैं, जो बेसिकली सेप्टिका क्लाइंट मशीन पे डालने के लिए यूज होता है। तो बेसिकली सेप्टिका के अंदर खुद की रिमोट डिप्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी नहीं है।
ओके। ओके। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा एक सेफ्टी का एजेंट है, इट्स लाइट वेट 4-5 MB का कुछ सेटअप रहता है, जो आप जिस भी मशीन पे इंस्टॉल करेंगे वो मशीन सर्वर पे आपके कनेक्ट हो जाएंगी, एंड उसके बाद में आप सर्वर से सेफ्टी का क्लाइंट इंस्टॉलेशन की कमांड वो क्लाइंट पे दे सकते हैं, या फिर आप कोई थर्ड पार्टी टूल यूज करके क्लाइंट पे वो सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। ओके। ठीक है। देन जैसे कि सेफ्टी का एजेंट और भी किन चीजों में यूज होता है, जैसे कि आपको सेफ्टी का क्लाइंट डालना है, ये तो एक यूज हो गया, राइट। देन अगर सेफ्टी का नया वर्जन आपको अगर क्लाइंट मशीन में डिप्लॉय करना है, उस केस में भी सेफ्टी का एजेंट यूज होगा। और थर्ड रहता है जैसे कि मैनेजमेंट टास्क, जैसे कि आपने अगर कुछ ट्रबल शूट आप कर रहे हैं और आपको उसके लिए सेफ्टी का क्लाइंट को डिसेबल करना है, डिसेबल करना है आपको, कंप्लीटली उसको ऑफलोड कर देना है, उसके सारे ड्राइवर भी ऑफलोड करने हैं, राइट। सो अगर सेफ्टी का अगर पूरा ऑफलोड होगा तो उसको अगर आपको अप करना है तो किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए भी सेफ्टी का एजेंट आप यूज कर सकते हैं, जिसके हेल्प से आप वो चीजें कर पाएंगे। देन आता है सेफ्टी का क्लाइंट। ओके। सो सेफ्टी का क्लाइंट ये जो है हमारा DLP क्लाइंट रहेगा। सो इट विल बी इंस्टॉल इन एवरी वर्क स्टेशन जिनको आपको प्रोटेक्ट करना है। ओके। सो बेसिकली हमारा जो सेफ्टी का है दैट इज एंड पॉइंट बेस्ड DLP। सो जो मशीन पे आप सेफ्टी का डालेंगे वो एंड पॉइंट आपका प्रोटेक्ट होगा। ठीक है। और ये क्लाइंट पूरा DLP एक्टिविटी ऑपरेशंस क्लाइंट मशीन पे करेगा, एंड देन ऑल द लॉग्स विल बी सेंट टू योर सर्वर। अभी एक मिनट होल्ड करिए। ओके। सारे DLP की एक्टिविटीज आपका सेफ्टी का क्लाइंट करेगा, एंड देन दैट एक्टिविटी विल बी सेंट टू द सेफ्टी का सर्वर। ओके। ओके। तो जैसे कि ये एंड पॉइंट बेस्ड क्लाइंट है, तो इसमें क्या रहता है, हमेशा आपका क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट रहना चाहिए, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। इवन क्लाइंट इज नॉट कनेक्टेड टू द सर्वर तभी भी DLP पॉलिसीज आपकी चलती रहेगी। ओके। ओके। नेक्स्ट, दिस इज द आर्किटेक्चर बेसिकली। तो क्या रहेगा, सेफ्टी का मैनेजमेंट सर्वर। ओके। देन डेटाबेस, वेब सेफ्टी का मैनेजमेंट कंसोल ऑन द क्लाइंट साइड, क्लाइंट इंटरफेस। तो ये सारी चीजें जो है ना, राइट टॉप लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपको दिख रही है, 4-5 चीजें भी आप एक ही मशीन पे कर सकते हैं, मतलब ये बाय डिफॉल्ट एक ही मशीन पे यूज होता है, तो खाली अलग अलग दिखाई है। देन ऑन द क्लाइंट साइड दो कंपोनेंट रहेंगे, सेफ्टी का एजेंट एंड सेफ्टी का क्लाइंट। अगर आपके रोमिंग यूजर्स है, ओके, तभी भी आप इनको मैनेज कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, ओवर द फायरवॉल पोर्ट फॉरवर्डिंग करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट जो यूज होता है वो रहता है 4438, ओके, बिटवीन योर क्लाइंट एंड सर्वर, एंड जब वो कर देंगे तो आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द ऑन प्रीम सॉल्यूशन। ये जो है इसकी रिक्वायरमेंट है, सर्वर रिक्वायरमेंट। अगर आपको सर्वर सेटअप करना है तो लाइक फॉर जैसे कि इंफॉर्मेशन आपको रेडीली हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी, या फिर
इसका एक डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल है जिसमें लिखा है कि कितनी रैम, कितने हार्ड डिस्क स्पेस आपको चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी सपोर्टेड फ्रॉम विंडोज सर्वर 2012 एंड हायर, ओके। और डेटाबेस जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आता है वो आता है एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस एडिशन। तो एक्सप्रेस एडिशन में कैसे होगा, यू विल हैव अ 10 GB ऑफ डेटाबेस की लिमिट, अगर आपको पता है एक्सप्रेस एडिशन के अंदर, ओके। तो 10 GB का उसका डेटाबेस रहता है, वो फ्री आता है। अगर कस्टमर के पास में 200 या फिर उससे कम क्लाइंट्स अगर है एंड अगर उनको 6 महीने के लॉग्स अगर चाहिए तो एक्सप्रेस एडिशन विल बी इनफ। अगर उनके पास में मोर देन 200 क्लाइंट्स अगर है तो उस केस में उनको कोई माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर परचेज करना पड़ेगा उस सिनेरियो में। सेम इंफॉर्मेशन फॉर द मोर नंबर ऑफ डिवाइसेस लाइक 5000 और 10000 डिवाइसेस के लिए कितना रहेगा। क्लाइंट साइड में ऑपरेटिंग प्रोसेसर 2.4 GHz एंड हायर प्रोसेसर 2 GB ऑफ मिनिमम रैम इज रिक्वायर्ड और डिस्क स्पेस मिनिमम 2 GB ऑफ फ्री डिस्क स्पेस। अगर शैडो कॉपी फीचर अगर यूज कर रहे हैं देन यू विल नीड एट लीस्ट 10 GB फ्री स्पेस इन द डिस्क, ओके। देन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कंपैटिबल है, विंडोज 7 विद ऑल द विंडोज अपडेट्स और उसके बाद में विंडोज 8.1 10 विंडोज सर्वर 2008 R2 एंड हायर ऑल आर सपोर्टेड। जैसे कि मैंने बताया कि विंडोज की लेटेस्ट अपडेट रहनी चाहिए बिकॉज द बेस इज फ्रेमवर्क .NET फ्रेमवर्क। अगर लेटेस्ट अपडेट अगर नहीं है, .NET फ्रेमवर्क की लेटेस्ट अपडेट अगर इंस्टॉल नहीं है तो शायद ये इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। तो नाउअडेज मोस्टली विंडोज यूजर्स आर यूजिंग विंडोज 10, सो इतना तो कुछ चैलेंज नहीं है। बट ओके, सेप्टिका जब आप सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो उसमें दो टाइप से आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। एक तो रहता है ऑटोमेटिक में क्या होगा, ऑल द नेसेसरी कंपोनेंट विल बी इंस्टॉल ऑटोमेटिकली। जैसे कि डेटाबेस इंस्टॉल होगा, सेप्टिका सर्वर होगा, सेप्टिका मैनेजमेंट कंसोल होगा और वेब सेप्टिका भी होगा। तो कस्टम इंस्टॉलेशन, ओके, कस्टम इंस्टॉलेशन आप कब कर सकते हैं, जिस केस में अगर आपके यहाँ पे डेटाबेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ओके, और आपको उसी डेटाबेस को अगर कनेक्ट करना है तो उस केस में आप कस्टम इंस्टॉलेशन यूज कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी कभी सिचुएशन आ सकता है कि कस्टमर बोलेंगे डेटाबेस तो ऑलरेडी इंस्टॉल है बट इट इज ऑन द डिफरेंट मशीन, ओके, उसका खुद का डेटाबेस है। इन दैट केस कस्टम इंस्टॉलेशन आपको यूज करना पड़ेगा एंड हम उसको आपके डेटाबेस कस्टमर के डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ओके। सर ये जैसे ये सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा सर्वर के बाद, तो ये क्लाउड पे इंस्टॉल करेंगे या फिर फिजिकल मशीन पे? ओके, देखिए बेसिकली दिस इज ऑन प्रीम, तो आप कोई भी वर्चुअल मशीन चूज कर लीजिए। इट कैन बी इन द क्लाउड, इट कैन बी इन द ऑन प्रीम, दोनों भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि अभी जो एग्जांपल अभी हम क्या करेंगे एग्जैक्टली इंस्टॉलेशन तो मैं आपको रन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उस प्रोसेस में काफी टाइम लगता है। तो आई हैव प्रिपेयर सम स्क्रीनशॉट जिसमें मैं आपको शो करूंगा कि आपको क्या क्या करना है इंस्टॉलेशन के लिए। तो वी आर गोइंग विद द ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन, तो आपको खाली ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। ठीक है सर। जैसे ओके, हाँ, जैसे अगर किसी क्लाइंट ने इसका लाइसेंस लिया है सेप्टिका का, तो फर्स्टली आप हमें क्या कोई लिंक प्रोवाइड करेंगे या फिर कोई ये देखिए ये लिंक है, तो आप जब यूजर परचेज भी करते हैं तो उसको लिंक भी आती है डाउनलोड करने के सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसी में सारे सॉफ्टवेयर होंगे? इसी में सब कुछ रहेगा। ठीक है, मैं इसका लिंक भी आपको शेयर करूंगा ताकि फिर आप आपके मशीन पे इसको टेस्ट करिए एंड तब आपको कुछ आइडिया आएगा। ओके। सो ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन, फर्स्ट विंडो आएगा लाइसेंस एग्रीमेंट, देन हार्डवेयर प्रीरिक्विजिट चेक होगा पहले कि मिनिमम हार्डवेयर मीट हो रहा है क्या। अगर आप आपके टेस्ट मशीन पे अगर कर रहे हो और आपके यहाँ पे कम रैम, कम कोर ऑफ सीपीयू और डिस्क स्पेस अगर कम है तभी भी आप इंस्टॉलेशन कंटिन्यू कर पाएंगे, ओके। ओके,
एंड यहाँ पे पासवर्ड सेटअप का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आप एडमिन पासवर्ड सेट करेंगे आपके सेप्टिका मैनेजमेंट कंसोल के लिए एंड दैट्स इट। ओके, ओके देन उसके बाद में सारे एक एक करके कंपोनेंट इंस्टॉल हो गए। फर्स्ट इट विल इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, देन सेप्टिका मैनेजमेंट सर्वर इंस्टॉल होगा, देन सेप्टिका मैनेजमेंट कंसोल इंस्टॉल होगा, देन वेब सेप्टिका विल बी इंस्टॉल। तो ये मोस्ट ऑफ द चीजें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होती है 90%, 99, 99, 95% केसेस में ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन परफेक्टली चलता है, कोई इश्यूज आते नहीं है। ओके, सो यू डोंट नीड टू मच वरी अबाउट किस तरह से होगा, फेल हो गया तो क्या करना है। अगर कुछ नहीं चलता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स, अगर कुछ फेल होता है तो हमें वो ट्रबल शूट करना पड़ेगा। इस केस में, उस केस में आप खाली हमको कांटेक्ट करिए एंड देन वी विल हेल्प यू विद दैट। ओके 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 नेक्स्ट, हमारा अभी ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू दिस स्क्रीन टू लॉगिन। तो पासवर्ड तो आपने पहले ही सेटअप किया है। जैसे ही पासवर्ड सेटअप करेंगे तो आप इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड में चले जाएंगे, इस विजार्ड में ऑटोमेटिकली, जहाँ पे आपको फर्स्ट आपका SMTP सर्वर डिफाइन करना है। लाइक इस केस में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सेप्टिका विल यूज इट्स ओन SMTP सर्वर। आपको कुछ SMTP की डिटेल्स यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक करिए। देन यू नीड टू सेट अप एडमिन पासवर्ड, सॉरी एडमिन पासवर्ड भी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हो गया और आपने ही पासवर्ड डिफाइन किया है। ये कब इसकी जरूरत पड़ती है, जब आप मैन्युअल इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं, उस केस में यू नीड टू सेट अप अ पासवर्ड आल्सो। ओके, देन AD सिंक्रोनाइजेशन, AD के यूजर्स OUs कंप्यूटर सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। यहाँ से आप इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हैं, सेप्टिका एजेंट इंस्टॉलर। जैसे मैंने कहा ना कि वो एक छोटा सा इंस्टॉलर रहेगा, लाइक 5 MB का, then you need to install that, so you can download it from this screen। नेक्स्ट विजार्ड आता है जहाँ पे आपको आपका जो सेप्टिका लाइसेंस है वो डालना पड़ेगा, राइट। ओके देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आपको यूजर की ईमेल एड्रेस आप डाल सकते हैं जहाँ पे उसको अलर्ट्स एंड रिपोर्ट्स आने चाहिए। तो सेप्टिका सर्वर ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगा, जो भी प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स वगैरह रहते हैं उनका ये सेंड करने के लिए यूजर को, राइट। देन जस्ट फीड योर कंपनी नेम यहाँ पे, एंड ये इंफॉर्मेशन कुछ सेफ जोन बनाने के लिए, जैसे ही मैंने अभी आपको कहा था कि DLP क्या करेगा, इट विल प्रोटेक्ट डेटा गोइंग आउट फ्रॉम द चैनल्स। जैसे कि अगर मैं ईमेल का एग्जांपल लेता हूँ तो मैं कहीं भी डेटा बाहर नहीं भेज पाऊंगा मेरे सिस्टम से। ओके, सो लेकिन इससे तो यूजर कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, राइट। एटलीस्ट वो कुछ कंपनी डोमेन्स पे मेल भेजना उसको अलाउ रहना चाहिए। दैट्स व्हाई वी हैव अ सेफ जोन ऑप्शन, जहाँ पे आप कंपनी डोमेन वगैरह डिफाइन कर सकते हैं और यूजर विद इन द डोमेन या फिर जो भी डोमेन्स आप डिफाइन करेंगे, ईमेल एड्रेसेस आप डिफाइन करेंगे, वहाँ पे मेल भेज पाएगा, बाकी कहीं मेल नहीं भेज पाएगा। जैसे इसमें सर हम अपना जरूर करेंगे, अपना डोमेन, राइट। अब आपका डोमेन करिए तो यूजर विल बी एबल टू सेंड data within the organization। Okay, that's it, installation is completed। और इस तरह से आपका मेन डैशबोर्ड आएगा। देन फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा क्लाइंट मशीनों में इंस्टॉल करना। तो क्लाइंट मशीनों में इंस्टॉलेशन किस तरह से करेंगे, तो जैसे मैंने बताया 2 कंपोनेंट रहेगी जो हर मशीन पे आपको डालना है। एक तो रहता है सेप्टिका एजेंट, दूसरा रहता है सेप्टिका एंड पॉइंट क्लाइंट। तो सेप्टिका एजेंट किस तरह से डाल सकते हैं, एक तो आप लोकली MSI फाइल से डाल सकते हैं, ओके, या फिर अगर आप ESET के एग्जिस्टिंग कस्टमर अगर है, ओके, तो उस केस में आप ESET प्रोटेक्ट या फिर ESNC सर्वर से भी सेप्टिका को डाल पाएंगे, या फिर GPO या फिर SCCM अगर डोमेन नेटवर्क अगर है तो वहां से भी आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। देन सेप्टिका क्लाइंट किस तरह से करेंगे, तो जैसे मैंने कहा था कि रिकमेंडेड वे क्या है कि आप सेप्टिका एजेंट फर्स्ट डाल दीजिए एंड देन फ्रॉम द सेप्टिका मैनेजमेंट कंसोल आप सेप्टिका क्लाइंट इंस्टॉल करिए। ओके, उस तरह से आप करेंगे, या फिर लोकली भी कर सकते हैं MSI फाइल को आप मैन्युअली मशीन पे रन करके।
तो रिकमेंडेड वे क्या है, तो आपको मैंने बताया कि सेफ्टी का मैनेजमेंट सर्वर के थ्रू आपको करना है, तो इससे आप इजीली वो कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक सेफ्टी का एजेंट डाउनलोड कर लिया, जो सर्वर जब मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ ना इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, तभी मुझे ऑप्शन आता है डाउनलोड करने के लिए। ओके, देन आपको सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इंस्टॉलेशन आपका हो जाएगा। दिस इज अ लोकल इंस्टॉलेशन, राइट। देन आता है इंस्टॉलेशन थ्रू द सेफ्टी का सॉरी ईसेट मैनेजमेंट कंसोल। तो जैसे कि दिस इज द टेक्नोलॉजी अलायंस मेंबर फॉर आवर प्रोडक्ट, राइट। तो उससे क्या कर पाएंगे हम, हमारे सेफ्टी का मैनेजमेंट ईसेट मैनेजमेंट सर्वर से भी सेफ्टी का क्लाइंट मशीनों पे एग्जिस्टिंग मैनेज मशीनों पे इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। तो आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे ईसेट प्रोटेक्ट या फिर ईसेट सिक्योरिटी मैनेजमेंट सेंटर के अंदर एक टास्क बनानी है और वहां से आप प्रोडक्ट डाल पाएंगे इजीली। थर्ड रहता है जीपीओ। तो जीपीओ में आपको एक जीपीओ स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, मतलब कुछ खास आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, क्योंकि सारा कॉन्फ़िगरेशन इस MSI फाइल के ही अंदर रहता है कि उसको कहाँ से कहाँ कनेक्ट होना है। तो यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ पॉलिसी एंड जस्ट अप्लाई टू योर मशीन, सो इंस्टॉलेशन आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके। अगर आपको अभी सेफ्टी का एंड पॉइंट क्लाइंट किसी क्लाइंट मशीन पे इंस्टॉल करना है या फिर अपडेट करना है, तो किस तरह से करेंगे? जस्ट गो टू योर मेंटेनेंस, अपडेट एंड डिप्लॉय, और जहां से आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंस्टॉल करने के लिए। तो क्या करना है आपको, अगर पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे करना है तो इंस्टॉल जो भी लेटेस्ट वर्जन अगर है वो चूज कर दीजिए, बाद में पूरा ऑर्गेनाइजेशन चूज करिए, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, तो इससे क्या होगा, सेफ्टी का प्रोडक्ट जो भी मशीनें आपने मैनेज की है, ओके, या फिर जिनमें पुराना वर्जन चल रहा है, जिनमें सिर्फ एजेंट चल रहा है, उन सारी मशीनों में आपका सेफ्टी का क्लाइंट भी इंस्टॉल हो जाएगा। न्यू वर्जन अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। जी, न्यू वर्जन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, सो नाउ आई एम स्विचिंग माय मशीन। मैं अभी मेरे वीएम में चला जाता हूँ, जहाँ पे मेरा सेफ्टी का मैनेजमेंट सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, और यहाँ पे आप इसकी सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे पता चलेगा जो आपके मैनेज यूजर की ट्री आपको दिखेगी, राइट। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आप सारे लॉग्स देख सकते हैं क्लाइंट के ऊपर। अगर यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन फिल्टर करने के लिए ऑप्शन आता है। यहाँ पे एक सेकंड, मुझे इसको एक बार क्लोज करना पड़ेगा। जस्ट ओके, तो मैं इस स्क्रीन के बारे में बात कर रहा था, जहाँ से आप लॉग्स कौन से डेट के आपको देखने हैं। जैसे कि मुझे अगर रिसेंट लॉग देखने हैं, आई कैन डू दैट वीकली, मंथली, इस तरह से आप लॉग्स को फिल्टर कर सकते हैं, देन दोज लॉग्स विल बी विजिबल। ओके, देन यहाँ पे ओके, तो मोस्ट आपका जो मैं अभी आपको लास्ट में बता रहा था ना कि दिस इज योर सेक्शन लाइक मेंटेनेंस, अपडेट एंड डिप्लॉय। यहाँ से आप किसी भी मशीन पे सेफ्टी का एजेंट एंड क्लाइंट डाल सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे स्टेटस क्या है, लेटेस्ट वर्जन इज 10.0.22 एंड वर्जन अप टू डेट है। खाली यहाँ पे स्टेटस क्या है, इनएक्टिव है। तो इनएक्टिव का मतलब क्या है, आइदर मशीन इज टर्न्ड ऑफ और मशीन इज नॉट कनेक्टिंग टू द सर्वर। तो मेरे सिचुएशन में क्या है, तो मेरे दोनों भी वर्चुअल मशीन्स ऑफ है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इनएक्टिव दिखा रहा है। ओके, सो जब कनेक्ट हो जाएंगे तो दे विल शो लाइव। सर, जैसे हमने एंड पॉइंट पे अभी सेफ्टी का इंस्टॉल किया जी, तो सर्वर पे ऑटोमेटिकली कैसे आ जाएगा वो? हमें मतलब कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा? सर्वर में ऐड करना पड़ेगा या फिर कैसे? नहीं, कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा। जो आप यहाँ से पे पैकेज बनाते हैं ना सेफ्टी का विंडोज एजेंट, हाँ, वो जो एजेंट डाउनलोड होगा ना आपका ये वाला, वो एजेंट के अंदर पूरा कॉन्फ़िगरेशन रहता है कि उसको किस सर्वर को कनेक्ट करना है। ओके, एजेंट हमने यहाँ से बना लिया, उसी एजेंट को हमें क्लाइंट पे डालना है।
उसी एजेंट को आपको क्लाइंट पे डालना है। तो देखिए अभी एजेंट बनाने के दो अलग अलग तरीके हैं। जो मैं आपको ये बता रहा था ना, जहाँ पे आप क्या करेंगे, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो आपका चल रहा है, यहाँ पे आप सेफ्टी का एजेंट डाउनलोड करेंगे स्क्रीन पे। ओके, ओके। अभी क्या होगा, इस प्रोसेस से कर सकते हैं, या फिर अगर आपने सेफ्टी का ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, ओके, उस केस में आपको सिंपली अपडेट एंड डिप्लॉय एंड पॉइंट एनरोलमेंट, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा विंडोज एजेंट या फिर मैक एजेंट। तो मैं यहाँ से सिंपली डाउनलोड करूंगा, क्लिक ऑन ओके। आपका सेटअप डाउनलोड हो चुका है। इसके अंदर पूरी सेटिंग अभी रहेगी, कहाँ से कहाँ पे कनेक्ट करना है इसकी सेटिंग रहेगी। अगर मैं आपको इसको ओपन करके तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इसके अंदर सारी सेटिंग रहती है। ओके, ठीक है सर, तो ये बाय हमने डिफॉल्ट एजेंट जब डाउनलोड इस किया है तरह से यहाँ आप पे। हाँ सर, ये एजेंट हमने डाउनलोड किया। तो ये एजेंट हर मशीन के लिए, हमें हर एंड पॉइंट के लिए अलग डाउनलोड करना है या एक ही सब पे चलेगा? एक ही सबसे चलेगा। ओके, ठीक है। ओके, जब आप अभी देखिए, जब ये एजेंट आपने बनाया है ना सर्वर से, तो एक केस में क्या होता है, जो ये एजेंट आपका बनता है, इट कंटेन्स अ लोकल इंफॉर्मेशन। लोकल इंफॉर्मेशन मतलब मशीन का लोकल आईपी, ओके, या फिर लोकल होस्ट नेम को लेके ये आपके सर्वर को कनेक्ट होता है। इसकी अगर वैल्यू देखेंगे ना सबसे नीचे आके आप, ओके, तो ये देखिए, सर्वर कहाँ पे कनेक्ट होगा, पोर्ट so it will connect using a local IP, this is my host name। तो बाय डिफॉल्ट ये देखिए, मैंने इससे पहले इसको कॉन्फ़िगर किया था, इसकी वजह से इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। बाय डिफॉल्ट इट ट्राइज टू कनेक्ट यूजिंग अ लोकल आईपी या फिर लोकल होस्ट नेम से कनेक्शन के लिए आता है। लेकिन सपोज आप अगर पैकेज बनाना चाहते हैं रोमिंग यूजर्स के लिए, यूजर घर पे है, हाँ, और आप वो जब मशीन में इंस्टॉल करेंगे तो वो डायरेक्टली आपके सर्वर पे कनेक्शन के लिए आने चाहिए, ऐसी सेटिंग करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पैकेजर बनाना पड़ेगा। और वो किस तरह से बनाएंगे, ये जो हमारा सेटअप है ना सेफ्टी का पूरा सेटअप, इसको आपको रन करना है, और यहाँ पे कस्टम इंस्टॉलेशन वाले ऑप्शन से आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप एक चीज डाउनलोड कर पाएंगे। मैं देखिए दिखा देता हूँ आपको। तो सर ये मतलब दोबारा से फिर से करना पड़ेगा इंस्टॉल सर्वर पे? नहीं, इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। देखिए मैन्युअल इंस्टॉलेशन, हाँ, और यहाँ पे देखिए मुझे क्या चाहिए, सेफ्टी का एजेंट चाहिए, राइट, एक्सट्रैक्ट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कुछ भी होस्ट नेम आईपी एड्रेस डाल सकता हूँ, जैसे कि एक है 192.168.0.1, राइट। इसी तरह से मेरा अगर कुछ और आईपी 10.10.10.10 सब कुछ सपोज मेरा आईपी है, या फिर मैंने फायरवॉल पे एक फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम बना दिया है, राइट। या फिर मुझे अगर मेरा फायरवॉल वाला आईपी यहाँ पे अगर यूज करना है तो आई कैन डू दैट, राइट। मैं यहाँ पे मेरा फायरवॉल का आईपी डिफाइन करूंगा, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे कि मुझे अगर मेरा फायरवॉल का आईपी चाहिए तो आई कैन गेट, ये तो आपको पता ही रहेगा व्हाट इज माय आईपी, या फिर ये तो करंट आईपी आपका कौन सा है वो दिखाता है, लेकिन शायद कस्टमर के यहाँ पे अगर मल्टीपल आईपी एड्रेसेस है और उसको अगर मोर स्पेसिफिक उसमें से एक ही आईपी पे करना है तो वो भी वो कर सकता है, राइट। तो जैसे मैंने अभी एक लोकल मेरा आईपी चूज कर लिया, मेरा पब्लिक आईपी चूज कर लिया है, पोर्ट में चेंज क्लिक ऑन नेक्स्ट। पोर्ट 4438 जो डिफॉल्ट है वही रहेगा। और ये देखिए मैंने यहाँ पे पैकेज जनरेट कर लिया है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पैकेज बना लिया है। और अगर मैं इसको अभी ओपन करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे आप मैंने जो लोकल आईपी बनाया था वो वाला देख पाएंगे। एक सेकंड, ठीक है, क्लिक ऑन हियर, ये देखिए, हाँ, दिख रहा है आपको, एसटी सर्वर 223.2.2.3.5
तो इस तरह से आप कर पाएंगे। ओके। एंड जब जिस भी मशीन में आप एजेंट डालेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट कनेक्टिंग टू योर सर्वर। ओके सर, ये पब्लिक आईपी हमने डाली है ना? हाँ जी, तो पब्लिक आईपी से सीधा हमारे सर्वर पे आ जाएगा फिर? करेक्ट। ठीक है। सो इसके अलावा और कुछ डिप्लॉयमेंट में क्यूरी है? डिप्लॉयमेंट में सर नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जस्ट टेक 5 मिनट ब्रेक और उसके बाद में फिर से इस मीटिंग चालू रखिए। आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स। ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है।